حق خطیب، پہلے تو اس کا نام اسلامی نہیں۔ میرے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی دلاتا ہے قرآن کے ذریعے، اور میں پھر بھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں اور اللہ کا قرآن چھوڑ دوں؟ میرا رب قرآن کے ذریعے کینسر کا علاج کرواتا ہے، میں پھر بھی عمران خان کے اسپتال میں جاؤں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کو حق خطیب کہنا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ قرآن اور سنت میں ایسی کوئی دوا نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی کے منہ سے کیل نکل آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان آفیشل۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، جو انٹرویو ہے، یہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو مسئلہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر جعلی پیر بہت سے زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ایک پیر ہے، پیر خطیب سرکار، جو اس طرح کرتا ہے اور لوگوں کی علاج کرتا ہے۔ آج مفتی صاحب کے پاس آیا ہوں، ان سے بات کریں گے ان کے حوالے سے، کیونکہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ اس طرح کرتا ہے، اور جو مریض ہوتا ہے وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، جو معذور ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسئلہ ہے ٹیم سریام کا اور پیر خطیب سرکار کا، جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، جو معذور ہوتے ہیں، جو گنگا ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح شف کر دیتا ہے اور ہاتھ اس طرح ہلا کر دیتا ہے، تو وہ مریض جو ہوتا ہے وہ چلنے لگتا ہے، وہ بولنے لگتا ہے۔ تو آپ بتائیے اس بارے میں کہ کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جلی پیر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں حق خطیب، پہلے تو اس کا نام اسلامی نہیں، اس لیے کہ حق صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر یا تو اللہ نے اپنے آپ کو حق کہا یا اپنی کتاب کو حق کہا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کو حق خطیب کہنا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ پہلے تو اس کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن اور سنت میں ایسی کوئی دوا نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی کے منہ سے کیل نکل آئے، اس کے آنکھوں سے چین نکل آئے، اور اس کے ذریعے سے کرتب کرائے جائیں۔ اس پیر صاحب کو، اپنا نام تو اس کا جو بھی ہے مجھے نہیں آتا، یہ خطیب صاحب جس کو بولتے ہیں، یہ جلی پیر حق خطیب صاحب، یہ پہلے تو مجھے وہ آیت بتا دے، وہ کون سی آیت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اگر امراض دور ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں طبیبوں کے پاس کیوں گئے اور انہوں نے طبیبوں سے علاج کیوں کروایا؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس زمانے میں طبیب ہوتے تھے، اور تو چھوڑو غیر مسلم طبیبوں سے بھی علاج کرائے گئے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی آیت ہے جس کے پڑھنے سے امراض کافور ہو جاتے ہیں، کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی آ جاتی ہے، اور گونگے بولنے لگتے ہیں، اور شل لوگ چل پڑتے ہیں، تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی مشینیں جو جاپان سے اور امریکہ سے اور دنیا کے کونے کونے سے
खरबों रुपए की जो मशीनें लाई जाती हैं, इसकी क्या जरूरत है? पाकिस्तान के अंदर ऐलान हो जाए कि हक खतीब साहब जब तक मौजूद है सारे अस्पतालों के बुनियाद ढाए जाएं, सारे अस्पताल खाली कराए जाएं, सारे एक्सरों की मशीनें निकाली जाएं, सारे ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ये सारे के सारे बेच दिए जाएं, इसलिए कि हक खतीब साहब मौजूद हैं और कुरान तो मौजूद है ही मौजूद। वो तो हक खतीब साहब से पहले भी मौजूद था। इंशाअल्लाह हक खतीब साहब और मेरे और आपके जाने के बाद भी अल्लाह के फजल से मौजूद होगा। अगर कुरान करीम से ऐसे नायाब काम होते हैं तो फिर मुसलमान ममालिक में अस्पतालों और डॉक्टरों का वजूद इस कुरान के खिलाफ है। इसकी मैं एक मिसाल दे दूं इमरान साहब। एक औरत का शौहर है, वो उसको सारी जरूरियात उसकी पूरी करता है, रात को अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी भी अच्छे तरीके से कर सकता है। फिर भी अगर ये औरत इस शौहर पर इक्तिफा नहीं करती और दीगर मर्दों को बुलाती है तो ऐसे औरतों को हम क्या बोलते हैं? कंजर, रंडी। इसलिए कि शौहर मौजूद है, शौहर के पास सारे आलात भी मौजूद हैं, शौहर सब कुछ कर भी सकता है, शौहर कट्ठा मोटा भी है, उसके बावजूद अपने शौहर के अलावा दूसरे मर्दों को ये बुलाती है तो इसको हम ताइफ बोलते हैं, इसको हम कंजर बोलते हैं। तो अगर कुरान के जरिए अमराज का शिफा होता है, अगर कुरान के जरिए लोगों के ऑपरेशन होते हैं, अगर कुरान लोगों के पेटों से कीले निकालता है, अगर कुरान के जरिए आंखों से चैन निकाले जाते हैं, अगर कुरान के अंदर आंखों की बीनाई मौजूद है, अगर कुरान से गूंगे बोल सकते हैं, अगर कुरान से शल चल पड़ते हैं, अब मुसलमान फिर भी अस्पतालों का रुख किए हुए हैं, मुसलमान फिर भी डॉक्टरों का रुख किए हुए हैं, तो फिर ये मुसलमान और उस कंजर औरत में कोई फर्क है? ये तो कुरान की भी हुर्मती है, ये तो रब्बुल आलमीन की भी हुर्मती है। मेरा रब कुरान के जरिए कैंसर का इलाज करवाता है, मैं फिर भी इमरान खान के अस्पताल में जाऊं, ये तो गुनाह है। मेरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला आंखों की बीनाई दिलाता है कुरान के जरिए, और मैं फिर भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाऊं और अल्लाह का कुरान छोड़ दूं, ये तो मैं अल्लाह के कुरान की भी हुर्मती करता हूं, ये तो मैं अल्लाह ताला की फरमान की भी हुर्मती करता हूं। तो मेरी बात हो गई लंबी, लेकिन मैं आवाम को समझा रहा था कि सारे लोग जो ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई कुरान में शिफा है, अल्लाह ताला ने कुरान में शिफा का लफ्ज जरूर कहा है मगर बीमारियों के लिए नहीं, शिफाउल लिमा फिस सुदूर कहा है। सीनों के अंदर जो बीमारियां हैं, झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, शिर्क है, गुनाह हैं, इन गुनाहों का इलाज कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, कुरान एक आईन है, कुरान एक कानून की किताब है। इसके जरिए से अगर बीमारियों का शिफा होता तो मुसलमान ममालिक में अस्पतालों पर पाबंदी होती, जिस तरह के मुसलमान ममालिक के अंदर शिर्क के अड्डों पर पाबंदी है, जिस तरह के मुसलमान ममालिक के अंदर कुफरियात के अड्डों पर पाबंदी है, तो फिर अस्पताल सारे शिर्क और कुफर के अड्डे होते, डॉक्टर सारे अल्लाह के मुखालिफीन होते, इसलिए कि ये डॉक्टर तो खुदा का मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने लिखा है कि इलाज मैं कुरान के जरिए करता हूं, और मेरा स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर और MBBS कहता है कि नहीं मेरे पास आओ, फिर तो ये सारे डॉक्टर खुदा के मुखालिफ होते। मुसलमानों को समझने की जरूरत है। मेरा ये कुरान है, इसमें सूरत राअद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरत राअद और आयत नंबर है 31, इसमें मेरे परवरदिगार ने साफ कहा है, ये कुरान करीम है,
लोगों को चाहिए कि कुरान करीम को देख ले कि मैं हक खतीब नहीं हूं, मैं कोई जली आमिल और मैं कोई मनगढ़ंत मौलवी भी नहीं हूं। ये अल्लाह का कलाम है, सूरत राद है, आयत नंबर 31 है। इसमें अल्लाह ने फरमाया लव अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ। अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अगर ये कुरआन ऐसा होता जिसके जरिए पहाड़ छलाए जाते, अगर कुरआन पहाड़ों को तोड़ता और पहाड़ों को छलाता और पहाड़ों को जलाता, औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, या ये कुरआन ऐसा होता जिससे जमीन तय की जाती, इसके टुकड़े टुकड़े किए जाते, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या अगर कुरआन ऐसा होता जिसके जरिए मुर्दे बोल पड़ते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो फिर इस कुरान के जरिए वाकई ये काम होते। अगर किसी किताब के जरिए ये काम होने वाले होते तो सबसे पहले किससे होते? कुरान के जरिए होते। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ, ये सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, कुरान में नहीं है। कुरान किसी पहाड़ को नहीं उठा सकता, कुरान की कोई आयत जमीन को टुकड़े नहीं कर सकता, कुरान की कोई आयत फासले नहीं तय करवा सकता। ये सब कुछ करने वाला कौन है? जब कुरान कहता है कि मेरी अंदर ऐसी कोई आयत नहीं है, तो मुझे ये लोग दिखा दें और बता दें कि उन्होंने किस कलाम के तहत इस काम को, इस धंधे को चलाया है। ये किस आयत के, हमें वो आयत बता दे जिस आयत से आंखों से चैन निकलता है, वो आयत हमें जाहिर कर दे। जिस तरह कि मैंने कहा सूरत राद आयत नंबर 31, हक खतीब साहब ये आयत अगर इमरान खान पढ़ेगा भी तो यही माना देगा, ये आयत अगर तुम्हारा कैमरामैन पढ़ेगा भी तो यही माना देगा, ये आयत अगर कोई हिंदू पढ़ेगा भी तो यही माना मफहूम देगा। तुम मुझे वो आयत दिखा दो, जो आयत तुम पढ़ते हो मैं भी पढ़ूं तो उसी तरह हो जाए। ये सारा धंधा है। और बाकी रही ये बात कि भाई बहुत सारे लोग तंदुरुस्त हो रहे हैं, तो मैंने इसको पहली भी कई मर्तबा समझा चुका हूं इस बात को। जिन लोगों को तंदुरुस्ती मिलती है उनकी दो किस्में हैं। जो लोग कैमरे के सामने आकर के कहते हैं कि भाई मैं हक खतीब साहब के पास आया, मेरे गुर्दे में दर्द था, मैं ठीक हो गया। जो कहता है कि भाई इमरान खान आया और कहता है मेरी आंखों में बीनाई नहीं थी, मैं जैसे हक खतीब के पास आया मेरी बीनाई आ गई। ये दो किस्म के लोग हैं। पहले किस्म ये वो बिके हुए गुलाम हैं जो हक खतीब या किसी भी जली पीर और जादूगर की साथी होते हैं। वो एड़ी चूटी का जोर लगाकर झूठी गवाही देकर लोगों के सामने कहते हैं कि भाई मेरा भी यहां दर्द था तो मैं ठीक हुआ। ये अक्सर मिले हुए होते हैं। नंबर 2, जिनको वाकई शिफा मिल जाता है वो तवहुम परस्त होते हैं। दिमाग जो है ये सुपर कंप्यूटर है। आपके दिमाग के अंदर जब एक मर्तबा तवहुम की वजह से कोई बीमारी तुम्हारे दिमाग ने दिखा दी